quickly. How much did you raise there? 20 million. 20 million. India has a supply problem, not a demand problem. 17 years, build a 300 crore brand of sportswear, activewear. Couple of years down the line, ये trade करते करते I decided to take the plunge कि चल यार अपना brand बनाते हैं. Two of my friends said कि यार चल तू शुरू कर हम पीछे पीछे आते हैं. They never came after. Suddenly, post-COVID, the demand for our products was very high, and consumer adaptation for activewear increased very quickly. You were talking about the PLI scheme. What was that about? I think in 2023, government came up with product link incentive scheme for technical textiles. This year, our top line will be more than 400 crores. And this 400 crore top line is on the trade value. It is not on the retail value. जितना भी पानी हम यूज करते हैं हमारे प्रोडक्ट को डाई करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, हम रिसाइकिल करते हैं, रीयूज करते हैं. When should one approach an investor? When he thinks that he can scale very fast, he already has the formula and the product market fit. If you were to do it again, just with a capital of 10,000 rupees today, in today's time, how would you do this? Welcome Sunil to Level Up. 17 years, build a 300 crore brand of sportswear, activewear company. Tell me, how is it that you did not plan to raise funds earlier, but you started raising funds now? Well, we were growing reasonably fast, let's say 30-40% year on year. And it's a profitable company, so we never needed the funds. We were growing with our own profits. But then suddenly, post-COVID, the demand for our products was very high, and consumer adaptation for activewear increased very quickly. And we tried to grow faster. And when we tried to grow faster, we realized that we had to fix supply because the manufacturing ecosystem for activewear is not present in India. Correct. And we'll have to make very large investments into manufacturing. So that's when we decided that we'll have to raise non-organic capital so that we can improve our, manufacturing ability and hence grow a bit faster. Okay. So that's when we decided to raise private equity. Okay, got it. You were talking about the PLI scheme. What was that about? PLI played a catalyst. I think in 2023, government came up with a PLI product link incentive scheme for technical textiles. Okay. Where the government said that if there are some companies which help the country in import substitution, Okay. in product diversification. As you know, a lot of activewear and sportswear is imported. Correct. And a lot of Indian manufacturing is aligned to cotton and natural fibers, but we are not doing enough of technical textiles. And if there is a company which does a lot of job creation, if there is somebody who's putting a lot of investment into R&D, then government will go out and incentivize them. Okay. But there were certain conditions. The conditions were that there should be minimum 100 crore investment in plant and machinery. Okay. So we worked out the project report and it looked like we needed about 170 crore, about 20 million for this project. And we thought that our business was organically growing with our profits. But this is an additional growth lever that we wanted to do. And that's why we raised capital and we raised exactly 20 million. Through the PLI scheme? Through the PLI scheme. We wanted to build a factory with the PLI scheme. So how much did you raise there? 20 million. 20 million. Okay. So exactly whatever was required for that factory, we raised that amount. And that factory is halfway complete. It will be running, phase 1 will be running by March end. So it's a big mega factory, perhaps the biggest activewear factory south of China. Where is this factory located? In Perundurai. It's a place near Coimbatore. Okay. It's a couple of hours from Coimbatore. Okay. About 4 hours south of Bangalore. All right. So this round which you've done from A91, that is this round through the PLI scheme for the manufacturing and the backend to sort that out basically. Yeah, that's correct. So the round is separate. The PLI is separate. PLI is a government incentive which we'll get later once we show our performance. Correct. But right now, we raised money to build this factory. Can you explain what is this scheme? So what advantages do you get? Let's say you raise this capital through the private equity investor. You got that money, you are building the plant. Now they'll see that plant, they'll see that facility, and that's when the government... No, there is performance linked. So the government has identified many HS codes which are being imported into India in a large volume. The government has also seen that certain products where Globe is doing very well, but India is not doing very well. Okay. And if we invest 100 crore in plant and machinery, and if we generate a turnover of 200 crore plus in these specific HS codes, then government will give us a subsidy that is about 9% of our turnover in the first year.
So that is the play that you Yeah, wanted to do yeah, with the yeah. PLI via the PLI Yeah, scheme, and yeah. hence the raising of capital to invest in manufacturing facilities so that you can get. I mean, brand was naturally growing. There was Yeah. very good demand. Hmm. So not that we made the investment for PLI. Any which ways we would have made the investment, Okay. but it could have been smaller. Hmm. But because there was a PLI incentive from the government, it played a Made more catalyst sense. role Yeah. that we could improve our aspirations and Go do little bigger. bigger. Yeah. All right, understood. Tell me, like, if you've built this 300 crore brand, right, which is Yeah. very difficult to build in a niche category like activewear and sportswear. Yeah. If you were to do it again, just with a capital of 10,000 rupees today, in today's time, how would you do this? Well, it's been a very long journey, 17 years. So, you are an auditor, you very well know how compounding works. I'm not an auditor, but I'm a CA by education, but I don't do anything in audit. You But yeah, must but be I'm knowing, into investments, so I know what So compounding. how compounding works. Yeah. Irrespective, it could be 10,000 or zero, that doesn't matter. Hmm. So you have some ability. With that, you make some money. Save more, spend less, compound it, keep investing back into your business, and you'll be able to build it. But you have to be patient. You have to be, resolute. You have to be persistent. And if given the time, India is a very receptive market. 1.4 billion population, aspirational, growing, and there are so many gaps for entrepreneurs to plug. पर मुझे आप steps बताइए if you were to build an activewear, a proper activewear brand, and start with just 10,000 rupees in today's time, how would you go step 1, step 2, step 3? Today, activewear is at a scale or at a point where you need economies of scale. So it would not make sense for an early stage startup to invest in activewear. Okay. For an early stage startup, you should invest in the future. You should not invest in the present. Correct. My belief is that you should identify what is going to come 10 years henceforth and invest in that. So this is what you had done when you had started. yeah. That activewear is very, very new, probably a Western concept, Yeah. which could pick up in India. So 10 years. I'll tell you that 5. journey. Yeah. Like my family was in textiles for I don't know how many generations. Okay, very very long time. Okay. And I never wanted to be in textiles because while doing school and while doing college, my house was upstairs and my office was downstairs. Oh, Mom and dad used to work, and I used to see my dad and tell him ki yaar, you are an entrepreneur and you have a very hard working life. You work even on Sundays, and we as children were assisting our parents while going to school and college. And I did not want to be a part of that life. I wanted a more modern life, say 5-day work week, etc. So I took software. I joined a software company in Bangalore. I was working in software. While working in the software industry, I realized यार 2 दिन हफ्ते का क्या करेंगे, बोर हो रहा है, शाम को 5:30 बजे ऑफिस ख़त्म हो जाता है तो क्या करेंगे. एंड आई स्टार्टेड टू डू सम साइड हसल. मतलब कि in Bangalore there was a place called Pinia. It's an industrial estate where a lot of garments are being made. And there's a trade hub which is called Chickpete. Okay. So I used to go to Pinia, check out what are the export surpluses available there, buy those products and sell it in Pinia. Oh, Sell wow. it in Chickpete, yeah. Okay. So buy from Pinia, sell it in Chickpete, make 5%, 10%. What was your first trade? Do you remember what was your first trade? It Like, was like amount wise. हाँ अबाउट उस समय समझ लो कि तकरीबन 1,10,000 का ट्रेड होगा. 10% बनाया होगा एक दिन के 10,000 अंदर. you made in that हाँ, one first trade. एक दिन के अंदर. Wow. सो बहुत अच्छा लगा. मतलब इट गिव्स यू वैलिडेशन कि हाँ यू कैन ग्रो विद दैट मनी वट एवर यू हैव. सैलरी से जो पैसा अकाउंट में बनता था उसी से छोटा मोटा ट्रेड चालू किया. और इन दैट ट्रेड ये समझ में आया कि रीबॉक का पोलो शर्ट, नाइकी का पोलो शर्ट का बहुत डिमांड है, अच्छा बिकता है. This is which year? आई थिंक 2015, Okay. 2014-15 या. फिर ये समझ में आया कि 95% ऑफ इंडिया कैनॉट अफोर्ड एडिडास और नाइकी. उनको अगर अच्छा डिस्काउंट मिलता है तो वो लेते हैं. अच्छा प्रोडक्ट है, कंफर्टेबल है, अच्छा परफॉर्मेंस है, उनके लाइफस्टाइल को और कन्वीनियंट बनाता है. लेकिन काफ़ी लोगों के लिए आउट ऑफ बजट है. Correct. तो जब ये मार्केट गैप दिखाई दिया, आई वॉज लिविंग इन अ फ्लैट विद 5 or 6 रूममेट्स एंड द फ्लैटमेट्स, एंड
One of them was in Bain, one of them was in Deloitte, few B school guys. तो साथ में बोला कि ये मार्केट गैप है, इसमें कुछ करना चाहिए. 2-3 guys got together, we said कि साथ में मिलके कुछ बनाएंगे बिजनेस इसके पीछे. Couple of years down the line, ये ट्रेड करते करते I decided to take the plunge कि चल यार अपना ब्रांड बनाते हैं. And 2 of my friends said कि यार चल तो शुरू कर, हम पीछे पीछे आते हैं. They never came after that. They became too comfortable with their jobs. But I took the plunge, went to my dad for seed capital. That was a very interesting story. मतलब dad was wanting me to come to the family business. बट मैंने फैमिली बिजनेस ज्वाइन नहीं किया. मैंने आईटी लिया, जॉब किया. पापा को बोला कि नहीं, मेरे को बिज़नेस नहीं करना है वगैरह वगैरह. अब सडनली पापा को जाके बोल रहा हूँ कि बिज़नेस करना है, कैपिटल दो, और वो भी आपका बिज़नेस नहीं करना है. कुछ आइडिया है मेरे पास, उसके लिए कैपिटल चाहिए. तो उनको इमीडिएटली बोला नहीं. जॉब छोड़ दिया, घर गया, स्टार्टेड टू असिस्ट डैड इन हिज बिजनेस. हाँ, धीरे धीरे. यू हैव टू बटर हिम अप. हाँ, आई मीन I would say I have to win his confidence. हाँ, it's क्योंकि that's a good way to put it. कि भाई I am serious about what I am doing and I am very passionate about it. क्या है कि children I see in this generation, children those who are from entrepreneurship families, from business families, if they have an idea, they don't sell it to their parents. जैसे आप इन्वेस्टर को सेल करते हो, वैसे अपने पेरेंट को भी बेचना चाहिए आइडिया को. दैट इज माय बिलीफ. एंड इफ यू कैन सेल इट टू देम, देन यू गेट दैट कॉन्फिडेंस दैट यू कैन सेल इट टू अदर्स आल्सो. बट यू विल हैव टू प्रेजेंट कि भाई अगले 2-3 साल में मैं क्या करना चाहता हूँ, कहाँ पहुँचना चाहता हूँ. आप जो सीड कैपिटल दोगे उससे क्या होगा. It's a learning that how to pitch. Learning how to pitch, and it also gives you that reason to achieve that goal. Correct. मतलब आपने कमिट किया है तो आपको अचीव करना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी. You will put that extra push to fulfill what you've promised. Absolutely. Couple of months worked with my dad, and then slowly broke the ice, showed him the 5-year plan, Excel sheet and all. कि यार डैड आई वांट टू डू दिस एंड इसके लिए सीड कैपिटल चाहिए. एंड द एक्सेल शीट शोड कि 5 साल में रीबॉक को बीट कर देंगे इंडिया में एंड ऑल. एंड ही न्यू इट वाज नॉट प्रैक्टिकल. ही वाज अ बिजनेसमैन एंड ही न्यू कि ये प्रैक्टिकल नहीं है. बट ही सीन द पैशन इन मी, ही सीन द कमिटमेंट. तो ही हैड टू गिव इन, मतलब, एंड ही गेव मी सम सीड कैपिटल एंड आई स्टार्ट द बिजनेस विद दैट. आई लर्न दैट तिरुपुर एक हब है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होता है अपैरल का, और थोड़ा बहुत एक्टिव वेयर भी होता है. तो आई वेंट टू तिरुपुर. ये सोचा कि सोर्स करेंगे, अपना लेबल लगाएंगे, बेचेंगे, ब्रांड बन जाएंगे. साल भर ऐसा किया तो जो प्रोडक्ट मैंने बनवाया, सोर्स किया, उसका क्वालिटी बहुत ख़राब था. जो एस्पायर करते थे वैसा बनता नहीं था. स्पोर्ट्सवेयर ओनली, बट एक्टिव. हाँ, स्पोर्ट्सवेयर. दैट टाइम इट वाज स्पोर्ट्सवेयर. दैट टाइम एक्टिव वेयर नहीं करते थे हम लोग. और स्पोर्ट्सवेयर और एक्टिव वेयर में बेसिक डिफरेंस है. स्पोर्ट्सवेयर वो चीज़ है जब आप किसी स्पेसिफिक स्पोर्ट के लिए डिज़ाइन करते हैं, जैसे क्रिकेट के लिए, फुटबॉल के लिए, गोल्फ के लिए. कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट के लिए जब आप डिज़ाइन करते हैं तो वो स्पोर्ट्सवेयर होता है. और जब आप वर्सेटाइल यूज़ केस के लिए कुछ बनाते हैं तो वो एक्टिव वेयर हो जाता है. वही स्पोर्ट्स की टेक्नोलॉजी आप लेते हो और हाँ, मतलब इट्स मोर वर्सेटाइल यूज़ केस. करेक्ट. कि उसका स्टाइलिंग, उसका डिज़ाइन वगैरह ऐसा होगा कि हाँ, इट इज़ नॉट डिजाइन टू अ पर्टिकुलर स्पोर्ट, बट इट विल हैव द फंक्शंस ऑफ दैट स्पोर्ट्सवेयर. तो उस समय तो स्पोर्ट्सवेयर से शुरू किया था. एंड एक्टिववेयर वर्ड भी पता नहीं था उस टाइम, कॉइन भी नहीं था शायद. एथलीजर तो काफ़ी बाद में कॉइन हुआ. करेक्ट. उस समय यही सोच था कि ये जो टेक्नोलॉजी है, मतलब हमको लग रहा था कि जो भी इंडियन ब्रांड्स हैं वो इंटरनेशनल ब्रांड्स का लुक और फील तो दे पा रहे हैं, बट वो परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं. आपको देखने में वैसा दिखता है सेम, लेकिन जब आप पहनो तो आपको कंफर्टेबल नहीं लगता. तो देयर इज अ टेक्नोलॉजी गैप. So we wanted to democratize this technology. We wanted to bring this technology to our consumers because 95% of India can't afford it. That doesn't mean it should not be accessible to 95%. How much were you selling at? What was your price, the initial price of your one jersey, let's say a normal? Was about 250 rupees. 250 rupees. And that time Reebok and Adidas were selling at 900, 1500, 1200 ऐसा. So it was like 1/3 of the price or 1/4 the price. Okay. एंड वी वांटेड टू मतलब, लेकिन प्रोडक्ट अच्छा नहीं था. प्रोडक्ट बहुत ख़राब था. वैसा प्रोडक्ट बन ही नहीं पाया एक्चुअली. एक साल में जो पापा का सीड कैपिटल था वो जल गया. एंड बिकॉज़ यू वर जस्ट टेकिंग फ्रॉम सम मैन्युफैक्चरर और पुटिंग योर लेबल ऑन इट.
So you were not, there was no your R&D, हाँ nothing, कुछ nothing भी of नहीं those था, sorts. हमको लगता था कि भाई सोर्स करने से सब कुछ हो हाँ, जाएगा, हाँ. राइट वैसा ही सोच था उस टाइम, तो यंग थे, हाँ. ऐसा लगता था कि Yeah, सोर्स because करेंगे you हमारा don't know लेवल ना, है, हाँ, you don't have that skill set, you don't have that knowledge कि क्या करना है इसके अंदर, right? एंड वही लगता था, मतलब इनएक्सपीरियंस थे, लगता था कि सोर्स करेंगे बेचेंगे हो जाएगा, मतलब ऐसा ही बनता है ब्रांड, सारे ब्रांड तो सोर्स ही करते हैं तो हम भी सोर्स ही करेंगे, राइट। बट एक साल में वो पैसा ख़त्म हो गया, प्रोडक्ट बना अच्छा नहीं, जितना का कॉस्ट था उससे कम में बिका, ओह, हाँ तो मोटा मोटी वो पैसा जल गया, साल 1.5 साल में पैसा जल गया, तो अब क्या करें, पापा के पास वापस जाना मुश्किल होगा। तो मेरे एक अंकल थे जो तिरुपुर में ही मतलब ट्रेडिंग का काम करते थे, तो उनके पास गया, उनको पिच किया, बोला कि अंकल ऐसा ऐसा है, ये अच्छा लग रहा है, मैंने बहुत टाइम दिया है, 1.5 साल दिया है, एंड बहुत प्रॉमिसिंग लग रहा है, बट ये जो है ऐसे नहीं चलेगा, मतलब इसके लिए फैब्रिक वगैरह सोर्स करना पड़ेगा, टेक्निकल फैब्रिक वगैरह, उसके लिए पैसा ज़्यादा लगेगा। मैंने बहुत छोटा सीड फंड से चालू कर दिया, थोड़ा और लगेगा, इफ़ यू इंटरेस्टेड विल डू इट टुगेदर। तो मी एंड माई अंकल गॉट टुगेदर, इट वॉज अ 50-50 बिजनेस, अच्छा, एंड वी स्टार्ट दैट वे, इट्स स्टिल दैट वे। ओके, मेरी अंकल की फैमिली है, मेरी फैमिली है, तो नाउ इट्स बिकम अ फैमिली बिजनेस नाउ, बट दैट्स हाउ राउंड टू रेज हुआ, मतलब वहाँ उस से टर्म्स कितना, में। how much funds you got from your uncle? So with my dad I started with 20 lakhs, अच्छा, and then my uncle added another 20 lakhs, तो बहुत छोटा, but now the strategy and the direction had changed, the way you're going हाँ to मतलब फिर हम कपड़ा सोर्स करने लगे थे, produce the product is going to change now. हाँ तो वो समझ में आया कि कपड़े पे कंट्रोल होना है, हाँ, जो रॉ मटेरियल है उस पर कंट्रोल होना है अपना। तो वी स्टार्टेड टू सोर्स द रॉ मटेरियल एंड गिव इट टू मैन्युफैक्चरर्स टू मेक द गारमेंट। तो हमने सोर्स किया दिल्ली से, लुधियाना से, सिलवासा से, सूरत से, वी स्टार्टेड टू सोर्स द फैब्रिक एंड गिव इट टू गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स, और फिर बनाना चालू किया गारमेंट। थोड़ा बेटर था पहले से, बट स्टिल नॉट वेरी गुड, स्टिल नॉट अप टू द मार्क। 2-3 साल गए, 2010-11 में ये समझ में आया कि इसका इकोसिस्टम इंडिया में है ही नहीं, इंडिया से सोर्स करके बनेगा ही नहीं, प्रोडक्ट कंटिन्यूसली ख़राब हो रहा था। तो तब ये सुनने में आया, दूसरे ब्रांड्स का हमने स्टडी किया, एडिडास का, नाइकी का, रीबॉक का, उस समय इंडिया में प्री एमिनेंट ब्रांड रीबॉक था। ओके, तो ये स्टडीड कि वो लोग काफ़ी कपड़ा ताइवान और चाइना से मंगाते हैं, ओके, तो वो लोग नॉमिनेट करते हैं वेंडर्स को, जो उनके गारमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं वो नॉमिनेटेड वेंडर से कपड़ा लेते हैं और उसे गारमेंट बना के देते हैं उनको। तो वी ट्रैवल टू अ ट्रेड एग्जीबिशन इन चाइना एंड ताइवान। ओके, ताइवान में एक टाइटास बोल के एग्जीबिशन होता है और चाइना में इंटर टेक्सटाइल बोल के एग्जीबिशन होता है। ये दोनों एग्जीबिशन हम ट्रैवल किए, और देयर वी सॉ कि काफ़ी कंपटीशन पास में स्टॉल्स लगा के बेच रहा था प्रोडक्ट। तो एक फैब्रिक हमको अच्छा लगता था, तो हमने एक स्टॉल में पूछा इसका प्राइस क्या है, तो एक ने बताया $6, और दूसरे स्टॉल में गए, दूसरे स्टॉल को पूछा कि भाई ये सेम कपड़ा था, देखने में सेम, फील सब कुछ सेम, इसका प्राइस क्या है, वो बोला $5। तो जब $6 वाले को आके बोला कि यार बाजू वाला तो $5 में दे रहा है तो उसने बोला नहीं यार, 1 मिनट, आप कपड़ा देख के ये सब नहीं बता सकते, मैं पैरामीटर लिख के देता हूँ, आप उससे पूछ लो, अगर ये पैरामीटर वो मैच करता है और $5 में देता है, उससे ले लो, आई डोंट माइंड। उसने लिखा मॉइस्चर मैनेजमेंट का ये पैरामीटर, यूवी प्रोटेक्शन का ये पैरामीटर, एंटी माइक्रोबियल का ये पैरामीटर, ये स्टैंडर्ड अमेरिकन स्टैंडर्ड है, ये यूरोपियन स्टैंडर्ड है, इस स्टैंडर्ड के हिसाब से इतना वॉश चलेगा, वगैरह वगैरह उसने पूरा लिख के दिया। फिर हम बाजू वाले स्टॉल में गए, बोले कि यार ये स्टैंडर्ड तुम्हारा फैब्रिक मीट करेगा ना, ये एक्टिववेयर का कपड़ा है ना। बोले हाँ सर, एक्टिववेयर का कपड़ा है, कुछ स्टैंडर्ड्स तो मीट करता है, लेकिन बाकी थोड़े स्टैंडर्ड्स आपको अगर चाहिए, आपको लगता है ज़रूरत है, तो मैं कर दूंगा, लेकिन $6 लगेगा। तो ये समझ में आ गया कि ये जो कपड़ा है, इसकी जो परफॉर्मेंस है, आप देख के या जान के आप नहीं बोल सकते, कितना भी एक्सपीरियंस्ड आदमी हो, करेक्ट, वो लैब ही बता सकता है कि वो कपड़े का परफॉर्मेंस कितना है। that is where the R&D technology part comes हाँ, in. that is when the R&D and technology parts comes in. And the Taiwanese were also very clear to explain how this applies to real life. Okay, मतलब हम 300-400 रुपये में गारमेंट बेच रहे हैं, उसमें कंज्यूमर को टेक्नोलॉजी क्या समझ में आने वाला है? correct, खरीदते वक्त उसको कंज्यूमर को टेक्नोलॉजी समझ में नहीं आता है, yeah. बट खरीद तो वो लेगा। हम B2B मार्केटिंग करेंगे, रिटेलर शेल्फ्स में हमारे प्रोडक्ट को प्लेस कराएंगे, वगैरह वगैरह, हम सब कुछ सारा एफर्ट लेंगे, माल तो बेच देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन में माल तो बेच देंगे, प्राइस भी रीजनेबल है, माल तो बिक जाएगा।
लेकिन कंज्यूमर वापस वो प्रोडक्ट लेने क्यों आएगा? जब उसको नोटिसेबल डिफरेंस दिखाई देगा कि भाई ये हाँ अच्छा ठंडा रखता है, पसीने को जल्दी सुखाता है, मेरे लाइफ को कंफर्टेबल बना रहा है, कन्वीनियंट बना रहा है, जब उसको उसकी आदत लग जाएगी तब वो आएगा वापस लेने वापस के लिए। आएगा। एंड वो क्यों लगेगी, कब लगेगी, द ताइवानीज वे एबल टू एक्सप्लेन। जैसे आई वुड लाइक टू एलॉबरेट, जैसे व्हेन यू डू एनी एक्टिविटी, आप कोई भी एफर्ट लेते हैं, एक्टिविटी करते हैं, आप दौड़ते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं या आप मुंबई में आपका एक्टिव लाइफस्टाइल है कि भाई लोकल पकड़ के जाना है, काम करना है, वापस आना है, इट्स एक्टिव लाइफस्टाइल। तो अगर आप कोई भी टास्क करते हो तो आपको क्या चाहिए रहता है? कोई भी टास्क करने के लिए आपको क्या चाहिए रहता है? थोड़ा मतलब यू नीड दैट स्पेस एंड लाइक लिटिल कंफर्ट लेवल व्हाइल यू आर डूइंग दैट टास्क। नहीं, यू नीड एनर्जी टू डू एनी टास्क। अगर मेरे को एक ग्लास उठा के पानी पीना है तो मेरे को एनर्जी चाहिए। हाँ, मेरे बॉडी को पता नहीं होता कितनी एनर्जी चाहिए, तो जनरली बॉडी जो है जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी है उससे ज़्यादा जनरेट करता है। ओके। एंड हर एक्शन का इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे जैसे हम ये एनर्जी जनरेट करते हैं तो जब वो एनर्जी कोई टास्क में यूज़ होती है तो उसका ऑपोजिट रिएक्शन होता है हीट। एनर्जी बर्न होती है और क्रिएट्स हीट। करेक्ट। अब व्हाट इज ह्यूमन बॉडी मेड ऑफ? मतलब एनर्जी एंड मास एंड लाइक greater than 70% of human body is made of water. वाटर। And when you do any task, you generate heat. तो जब बॉडी के अंदर जो पानी है वो हीट के साथ रिएक्ट होता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होकर वाटर वेपर बनता है। ओके। और हमारे स्किन के पोर्स बहुत छोटे होते हैं, तो जितने छोटे वो पोर्स हैं उसमें वाटर मॉलिक्यूल ना ही अंदर जा सकता है ना ही बाहर आ सकता है। लेकिन जब पानी वाटर वेपर बनता है तो वो स्किन से बाहर आता है, क्योंकि वाटर वेपर का मॉलिक्यूल पोर से भी छोटा होता है। तो बॉडी से कंसिस्टेंटली वाटर वेपर बाहर आता है। ये बॉडी का नेचुरल कूलिंग प्रोसेस है। जब वो वाटर वेपर बाहर आता है तो उसमें से कुछ हिस्सा, जैसे आपके एयर में ह्यूमिडिटी होती है, उसके साथ मिक्स होके कंडेंसेट होता है और वो कन्वर्ट होता है स्वेट में। दैट इज व्हाट वी कॉल ए स्वेट। एंड जब स्वेट स्किन के ऊपर जमा होता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल बड़ा होता है तो वो पोर्स ब्लॉक हो जाता है और बॉडी से जो एक्सेसिव हीट है निकल नहीं पाती। दैट्स व्हेन यू गेट टायर्ड। So the role of clothing that you wear is to absorb that moisture and to spread it to a wider area. Correct. जैसे अभी इस ग्लास में 200 ml पानी है, राइट? अगर मैं इसको बाहर रख दूं और यही ग्लास का पानी मैं एक प्लेट पे 200 ml डाल के बड़े प्लेट पे रख दूं बाहर, तो कौन सा पहले सूखेगा? वो वाला, प्लेट वाला, राइट? क्योंकि सरफेस एरिया ज़्यादा है। सिमिलरली कपड़ा जितना फैलाएगा पानी को उतना जल्दी सूखेगा। ओके। बेसिक साइंस। एंड कॉटन में नेचुरल हाइड्रोफिलिसिटी होती है, नेचुरल अब्जॉर्प्शन का कैपेबिलिटी होता है, लेकिन कॉटन का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि उसको ज़्यादा वो वाइड फैला नहीं सकता। ओके। तो जब आपको माइल्ड स्वेट होता है तो कॉटन इज़ वेरी सूटेबल, बट जब आपको एक्सेसिव स्वेट होता है तब कॉटन इज़ नॉट इनफ। यू नीड अ हायर परफॉर्मेंस मटेरियल। एंड जनरली पॉलिएस्टर इज हाइड्रोफोबिक, इट डज नॉट absorb water. But polyester is very versatile. You can create various shapes out of polyester. Correct. You can create a polyester which has multiple channels which can spread moisture also. So that's why you see even Cristiano Ronaldo, everybody, they use polyester while they're doing sporting activity because it enhances their performance. Okay. But it is not the normal polyester. It is very special. It is very technical. Yeah, it is a it is- technically enhanced polyester. Basically. Got it. So that's what we learned in Taiwan. Tell me one thing, when you were, like, you've been importing from Taiwan, China, etc., these fabrics and stuff like that, have you ever faced any cultural misunderstanding with them? Oh, I'll tell you a very good story. 2011 में जब चाइना गया तो कुछ इंडियन एजेंट्स थे जो हमारा वहाँ काम करते थे, हमारे लिए सोर्सिंग करते थे, तो बोलते थे कि चाइनीज़ जो है चीनी चोर है, उसको उस पर भरोसा मत करना, उसको पैसा मत देना वगैरह वगैरह। एंड वैसे हम काम करते थे तो काफ़ी कम्युनिकेशन लेयर्स थे हमारे बीच में, तो मिसकम्युनिकेशन होता था, इश्यूज होते थे। तो जब हम सीधा काम करने लगे उनसे डायरेक्ट, तो आज तक हमारा कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ। तो दे आर वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी ऑनेस्ट पीपल। ओके। हाँ, मतलब एंड दे आर वेरी कमिटेड टुवर्ड्स देयर वर्क। मतलब उनका धंधे से मतलब है, हाँ, काम मतलब करो, पैसा दो, काम करो, लेके जाओ। हाँ, मतलब वो धंधे को इमोशन के साथ मिक्स नहीं करते। हाँ। जैसे अभी बॉयकॉट चाइना ट्रम्प बोलेगा तो बॉयकॉट चाइना का टी शर्ट भी छाप के देंगे। हाँ। बोलेंगे यार धंधा अपनी जगह है, हमारा नेशनलिज्म अपनी जगह है। हाँ। अब मैं ये टी शर्ट नहीं बनाऊंगा तो कोई और बनाएगा, उसका फायदा वो उठाएगा। करेक्ट। क्या फायदा? कोई तो बनाएगा, राइट?
तो मैं ही बना लेता हूँ यार. तो दे वेरी यू नो, उनको, उनके लिए काम उनका भगवान है. दे नॉट रिलीजियस, लेकिन जो काम है वो जो करते हैं उसको बहुत वैल्यूबल मानते हैं वो लोग. तो मतलब ऐसे ही वी स्टार्टेड टू इम्पोर्ट, एंड देन 2013-14 में रुपी बहुत डिप्रिशिएट हुआ. रुपी गया 50 to 60 विद इन 1 year. तो इम्पोर्ट महंगा हो गया 20%. फैब्रिक पे इम्पोर्ट ड्यूटी था 11, वो हो गया 22. गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए, बोले कि इम्पोर्ट मत करो, इम्पोर्ट करोगे तो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्राइसिस चल रहा है, डॉलर नहीं है इंडिया के पास. तो इम्पोर्ट कम करने के लिए उन्होंने नॉन ट्रेड बैरियर्स भी लगाए, ड्यूटी भी बढ़ाई और नॉन ट्रेड बैरियर्स भी लगाए. तो 3-3, 6-6 महीने हमारे कंटेनर्स पोर्ट पे पड़े थे, इम्पोर्ट नहीं कर पा रहे थे. रेगुलेशंस चेंज हो गए. हमारे एम्प्लॉयज़ जो हमारे फैक्ट्री में थे वो बेकार बैठे थे और उनका सैलरीज जा रहा था. तो कंपनी केम टू ब्रिंक ऑफ एक्सटिंक्शन द ब्रांड, कि भाई ये तो ख़त्म होने वाला है. तो दैट्स व्हेन वी डिसाइडेड कि यार चल ये कपड़ा खुद बनाते हैं. ओके. पहले ही लोग हमको पागल बोलते थे कि भाई ये तो यहाँ बन नहीं सकता, अब तुम बना रहे हो, अब कपड़ा भी बनाओगे जो पॉसिबल नहीं है, टेक्नोलॉजी बहुत कॉम्प्लेक्स है. लेकिन थैंकफुली हम जिधर से कपड़ा इंपोर्ट कर रहे थे वो यान भी बेचते थे, रॉ मटेरियल भी बेचते थे, और रॉ मटेरियल पे रिस्ट्रिक्शन नहीं था उस टाइम पे. ओके. तो उन्होंने बोला कि आप यान हमसे ले लो, कपड़ा आप खुद बना लो, हम आपको गाइड करेंगे. So you had to make the cloth in India. In India, in our factory. You just take the yarn and some raw Yeah, materials from yeah. Taiwan or China. So we'll teach you how to make the fabric. Okay. We'll try to guide in our own way, and that's when we started to import the raw material, and we invested in some machinery. We took bank debt and all, and we invested into own fabric manufacturing. 2-3 साल लगा हमको फिगर आउट करने में. काफ़ी स्लो स्टार्ट था. जो हमारा एक स्केल ब्रांड पहुंच चुका था, वहाँ से वापस थोड़ा डिप हुआ क्योंकि फैब्रिक अवेलेबल नहीं था, और वापस जब इंडिया में बनाने की कोशिश कर रहे थे तो अच्छा नहीं बन रहा था, थोड़ा टाइम लग रहा था हमको सीखने में. काफ़ी माल ख़राब भी हो रहा था. You had to set up your own plant? Yeah, we set up our own plant. Okay. And this was all bootstrap capital? There was bank debt also. Bank debt, हाँ. हाँ, bootstrap capital with bank. थोड़ा leverage, okay. हाँ, मतलब काफ़ी लेवरेज हो गया था उस टाइम. डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब 1.5 तक चला गया था. Oh, okay. हाँ, तो मतलब जितना हमारा इक्विटी था उससे ज़्यादा बैंक का और डेट तब रेवेन्यू कितना था? This is in 2013, 14, 14. 16. मतलब 14 में इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन आया, फिर हमने मैन्युफैक्चरिंग का कैपेबिलिटी लगाया. टाइम लगता है सब में. Correct. तो 2016 में जो है हमारा काफ़ी लीवरेज भी था, और उस समय हमने पिवट भी लिया. उस समय स्पोर्ट्स वेयर से हमने एक्टिव वेयर में पिवट लिया, कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे थे वो काफ़ी कंफर्टेबल था. जैसे मैंने अभी मॉइस्चर मैनेजमेंट के बारे में बताया आपको, वैसे ही हमारे प्रोडक्ट में यूवी प्रोटेक्शन था. Okay. जो आप धूप के नीचे जाते हैं तो आपका बॉडी मेलानिन रिलीज करता है, और मेलानिन ये स्किन के पोर्स के अंदर जाके बैठ जाता है, Okay. जिससे बॉडी की हीट बाहर नहीं निकल पाती. बट बॉडी हैज़ टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द यूवी रेस, क्योंकि यूवी रेस के थ्रू, यूवी और आईआर रेस के थ्रू गर्मी बॉडी के अंदर जा रही है और अंदर का टिश्यू डैमेज कर रही है. Okay. तो बॉडी का इम्यूनिटी काम करता है, वो मेलानिन रिलीज करता है, जिसकी वजह से आपका स्किन डार्क हो जाता है. Okay. लेकिन इट ऑल्सो ब्लॉक्स द हीट कमिंग फ्रॉम इनसाइड. तो अगर आपके कपड़े में यूवी प्रोटेक्शन है तो इट विल बी कूल अंडर द सन ऑल्सो. Okay. तो ऑल आर प्रोडक्ट्स आर यूपीएफ 50+. दैट मीन्स ओनली 1 out of 50 यूवी रेस गोज इनसाइड, 49 आर रिफ्लेक्टेड. Okay. तो ऐसा हमारा एक और टेक्नोलॉजी है जिसको हम ओडर फ्री बोलते हैं. जैसे कि आप, Odor free. हाँ, ओडर फ्री Yeah. एंटी माइक्रोबियल टेक्नोलॉजी, टेक्नो गार्ड बोलते हैं हम. तो जैसे आप कोई भी स्वेटिंग एक्टिविटी करते हो, तो अगर बॉडी में स्वेट हो जाता है तो थोड़ी देर बाद, 2-3 घंटे बाद स्वेट से ओडर आने लगती है. Okay. हाँ, बदबू आने लगती है पसीने Yeah, की. yeah, absolutely. तो वो बदबू जो है, जैसे बारिश के बाद बहुत मच्छर पैदा होते हैं, राइट? क्योंकि इट इज़ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट फॉर मस्कीटोज टू ब्रीड. Yeah. पानी पडल होता है तो वहाँ पे मस्कीटोज को एक ले करने में आसानी होती है और मस्कीटोज ब्रीड होते हैं. Correct. वैसे ही शरीर के ऊपर माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, जो फास्ट ब्रीड होते हैं. और वंस दे ब्रीड फास्ट व्हेन यू आर स्वेटिंग, वंस दे ब्रीड फास्ट, दे ऑल्सो हैव अ लाइफ स्पैन, 2 घंटा 3 घंटा टाइप्स. जैसे हमने सुना कोविड का 4 घंटा लाइफ है या 6 घंटा लाइफ है, वैसे माइक्रोब्स का लाइफ होता है. तो वो डाई होते हैं और हमारे बॉडी पे एक्यूमुलेट होते हैं, वो डीके होते हैं. तो उसमें से अमोनिया निकलता है, वो स्वेट ओडर है. Okay. तो वी यूज़ जिंक पायरेथियन. इट्स मिनरल जो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी है. जैसे सिल्वर में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है, कॉपर में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होता है, Okay. वैसे ही जिंक में भी होता है. जिंक सस्ता है सिल्वर से.
तो वी नैनो कोट जिंक ऑन ऑल आवर फैब्रिक्स सो दैट इट रिड्यूसेस द माइक्रोबियल लोड एंड इट रिड्यूसेस योर स्वेट ओडर. तो आपका हाइजीन बढ़ाता है, ताकि आप ट्रेन कर रहे हो, कोई भी स्पोर्टिंग एक्टिविटी कर रहे हो, उस समय आप पानी पीते हो, खाते हो, और माइक्रोबियल एक्टिविटी ज़्यादा होएगा, माइक्रोब अंदर जाएगा, इन्फेक्ट करेगा आपको. तो माइक्रोबियल एक्टिविटी को लोअर करना होता है स्पोर्टिंग के लिए. इंटरेस्टिंग. एंड ये सब चीज़ें हमको समझ में आई जब हम ताइवान गए. तो उसका क्या वैलिडेशन है, उसको दुनिया के कौन से लैब में भेजना है टेस्ट करने के लिए, ये सब हमको वहाँ पता चला. तो इंडिया में ये कल्चर नहीं था. All these Taiwanese importers who were there, Taiwan or Chinese importers, they were the importers who were also selling their fabric to Adidas or Reebok No. or Nike. Adidas and Nike were buying from the manufacturers. They're not buying from the importers. Okay. Because importers, they are selling the look and the feel. Because none of the brands in India know what to demand from the manufacturer. उनको रेटिंग पता नहीं है, और उनको ये पता है नहीं है कि फैब्रिक आ गया, जो वेंडर क्लेम कर रहा है उस पर ये है, उसको कैसे इवेल्युएट करें. उसके लैब्स नहीं है इंडिया में. Correct. आप कहाँ भेजोगे उस कपड़े को वापस इवेल्युएट करने के लिए कि ये एंटी माइक्रोबियल परफॉर्मेंस कितना है, मॉइस्चर मैनेजमेंट का परफॉर्मेंस कितना है. अब लैब्स आ गए इंडिया में, उस समय नहीं थे. Okay. तो वी हैड टू सेंड द फैब्रिक्स अब्रॉड टू टेस्ट इट आवरसेल्व्स. वी कांट ट्रस्ट द वेंडर ऑल द टाइम. Correct. मतलब एक बार वेंडर बोल देगा. वो तो बोल देगा, वो भी कुछ सर्टिफिकेशन भी दे देगा, बट आपको हर बैच पे टेस्ट करना होता है. Okay. Tell me one thing. This technology that you mentioned, one is about anti-odor, Antimicrobial, moisture management, UV protection. EV protection. Yeah, these three. So when you invented these, or when you bought adapted these technologies from Taiwan or from China into your product in India, Yeah. were Reebok, Adidas, all these people also doing the same? Yeah. I mean, they also so this technology was there already existing. This technology was there existing, but the problem with Adidas and Nike was कि वो जो दुनिया में उनका चलता था कि भाई दुनिया में ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा चल रहा है, सक्सेसफुल हो गया, चलो इंडिया में भी बेचते हैं. लेकिन इंडिया के कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स यूनिक है. जैसे कि जैसे नाइकी और एडिडास बहुत स्पैंडेक्स लाइक्रा वाला गारमेंट बेचते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लेकिन वो शरीर से चिपकता है. एंड वी इंडियंस डोंट लाइक द फैब्रिक टू कम एंड स्टिक टू अवर बॉडी. हमारे बॉडी के कर्व्स दिखते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता. वी आर अ बिट कंजर्वेटिव. तो हाउ डू यू स्लिम फिट जो बोलते हैं, तो हाउ डू यू गिव अ प्रोडक्ट व्हिच डजंट स्टिक टू योर बॉडी, स्टेज अवे फ्रॉम योर बॉडी, बट स्टिल गिव्स यू द स्ट्रेच व्हेन यू नीड इट. ओके. सो दैट इज अ डिफरेंट टेक्नोलॉजी. सिमिलरली इंडिया इज हॉट एंड ह्यूमिड, यहाँ का कंडीशंस अलग हैं. मे बी उधर कुछ और वो बना रहे हैं ड्राई वेदर के लिए. जैसे लुलू लेमन बोल के एक यूएस का ब्रांड है, बहुत नाइलॉन पैंट्स बनाता है, बट नाइलॉन इज नॉट सूटेबल फॉर इंडियन वेदर क्योंकि इंडिया इज मोर हॉट एंड ह्यूमिड. नाइलॉन इज बेटर फॉर ड्राई वेदर. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड योर लोकल कंडीशंस and design the product according to that local condition. So now, of course, they would have started doing that, right? But there is नहीं, अभी भी वो गैप है क्योंकि उतना स्केल नहीं है इंडिया में. जो टॉप ऑफ द पिरामिड है ना, टॉप ऑफ द पिरामिड में पॉपुलेशन बहुत छोटा है. करेक्ट. तो वहाँ पे उतना स्केल ही नहीं है, और वहाँ पे एक तो नंबर ऑफ कंज्यूमर्स कम है, ऊपर से उनके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा है. तो वहाँ पे इतना स्केल ही नहीं है कि आप उनके लिए कुछ इन्वेंट करो या डेवलप करो. क्योंकि जब आप इन्वेंट करो, डेवलप करो, तो आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल चाहिए, क्योंकि पैसा बहुत लगता है R&D में. और जब आप एक स्टाइल का 500,000 गारमेंट बनाओगे तो R&D का पैसा कैसे निकालोगे? यू नीड टू मेक इट इन द मिलियंस, तभी R&D का पैसा बाहर निकलेगा, राइट? सो आई वांट टू आस्क यू दैट व्हेन यू कंपेयर इट टू Nike, Adidas, Reebok, these guys are selling probably at 1,000 plus. I'm assuming their average MRP would be 1,000 plus. Yours is at what price? I think it is 300, 350 something. नहीं, our average price point is 600. 600. So 300 से लेके 500 के बीच में हमारे टी शर्ट्स हैं. हाँ. और हमारे ट्रैक पैंट्स जो है समझ लो कि 600 से लेके 750, 800 तक के ट्रैक पैंट्स. टी शर्ट्स खाली गिनो 400 रुपए, उनका 1000 रुपए, अगर हम ये कंपेयर करें. करेक्ट. How do we get this efficiency that we are being able to sell it at 400 with the technology that we have adopted and are using? Of course, that becomes expensive with R&D manufacturing. Yeah, of course. How do we sell it at 400 and Nike is selling at 1,000 plus or Adidas is selling at 1,000 plus? देखो इंडिया का एडवांटेज बताओ. हाँ. 1.4 बिलियन पीपल है यार. हाँ. इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है यहाँ पे बहुत बड़ा है, मतलब आपके इमेजिनेशन से बहुत बड़ा है. समंदर है डिमांड इंडिया में. करेक्ट. और सप्लाई जो है वो बाल्टी में भर के पानी डाल रहे हो आप समंदर में, राइट? तो इंडिया से सप्लाई डिप्राइव्ड इकोनॉमी है. हम बोलते हैं हमारा कंजम्पशन कम है क्योंकि हमने वो हमारे पॉपुलेशन के
परफॉर्मेंस को या हमारे पॉपुलेशन की एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए प्रोडक्ट बनाया ही नहीं, उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाया ही नहीं। अब इंडिया में आप देखो, समर में चले जाओ अगर आप, मैंने मेरे फैक्ट्री में नोटिस किया है, कई जगह लोगों को नोटिस किया है, समर में लोग ऐसा ऐसा चलते हैं पैर फैला के, राइट। इट्स अ बिग प्रॉब्लम, बट हम उसको डिस्कस नहीं करते, उसको सॉल्व नहीं करते। टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी उसको सॉल्व कर सकता है, ओके, राइट। इट इज़ वेरी सिंपल सोल्यूशन। माइक्रोबियल एक्टिविटी बढ़ जाती है, माइक्रोब्स दे ईट डेड स्किन, देन दे स्टार्ट टू ईट फ्रेश स्किन, रैशेस हो जाते हैं। तो इफ़ वी हैव अंडरवेयर विच हैज़ गुड एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। बट उतनी बड़ी पॉपुलेशन है, उसमें ये प्रॉब्लम इतने सारे लोगों को है, उसको कोई सॉल्व नहीं कर रहा है। हम क्या है, अमेरिका में चल रहा है भाई, ले आओ यहाँ पे वही रेप्लिकेट करो। टैग देखना नाइकी का, हाँ वो नाइकी के लिए, और जो इंडियन ब्रांड्स हैं, यूजर्स को टैग देखना है, कंज्यूमर को टैग दिख जाता है तो दे आर लाइक ओके चलो बेस्ट। नहीं, नाइकी इज डूइंग इट, ओके, बट 95% ऑफ इंडिया इज नॉट एबल टू अफोर्ड नाइकी। एंड जो इंडियन ब्रांड्स कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि भाई ऐसा लुक फील दे दो, कस्टमर को कुछ समझ में नहीं आता है, राइट। कस्टमर को खरीदते वक्त कुछ समझ में नहीं आता है, बट वो ये नहीं सोचते कि वो वापस भी तो खरीदेगा। एक बार आप उसको मतलब गलत चीज़ दे दोगे, अगली बार तो वो वापस आएगा ना। एंड उसके वो भी यही देखते हैं कि वहाँ क्या चल रहा है, उसने क्या किया, वही ला के करते हैं, यहाँ पे सक्सेस हो जाएगा, राइट। यहाँ की प्रॉब्लम क्या है, उसके लिए कौन सा टेक्नोलॉजी रिलेवेंट है, उस टेक्नोलॉजी में क्या रिफाइनमेंट यहाँ के हिसाब से लाना है, उसको अप्लाई करना है और यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है। आप वही का वही ले आओगे यहाँ पे, तो यहाँ के लिए रिलेवेंट नहीं होगा ना। Correct. मैंने आपको एग्जांपल दिया नायलॉन का। अभी नायलॉन के लेगिंग्स हैं, जिम लेगिंग्स जो वुमेन में बहुत चल रहे हैं यूएस में। यस, एक ब्रांड है लुलुलेमन, एक ब्रांड है एलो, हर कोई इंडियन ब्रांड बोल रहा है हम भी वैसा बनाएंगे। लेकिन वो हमारे लिए रिलेवेंट है क्या? क्या हमारे जिम्स में एयर कंडीशंस हैं? कितने लोगों को एयर कंडीशन का एक्सेस है इंडिया में? मतलब यू हैव टू सॉल्व इट दैट वे। correct. Do you also feel this is the one of the reasons why today's founders also struggle to get that product market fit little early on, especially in the apparel So, I mean, any brand which is a consumer brand has to start with a solutions approach. मतलब कि प्रॉब्लम क्या है और सोल्यूशन कहाँ है। मतलब दे स्टार्ट बिल्डिंग देयर बिजनेसेस बाय अ प्रोडक्ट अप्रोच, कि ये प्रोडक्ट वहाँ चल रहा है, ये प्रोडक्ट अच्छा है, यहाँ भी चलेगा, हम ले आते हैं, बेचते हैं, राइट। That approach is, I would say, for an entrepreneur who wants to start with a solutions approach. Something I want to talk about this logo that I was just noticing. So this is a young man who's about to begin the race of his life. हाँ, तो वही चीज़ है कि ये थोड़ा on your mark वाला चीज़ है, on your mark वाला get set go. So देखो, इंडिया में काफ़ी बड़ा यंग पॉपुलेशन है, समझ गए ना आप। इंडिया में 15 से 40 जो एज ग्रुप है वो बहुत, मतलब मोर देन 60% ऑफ इंडिया इज इन 15 to 40 एज ग्रुप। करेक्ट। एंड दैट पॉपुलेशन आई वुड से इज ट्राइंग टू रन द रेस ऑफ इट्स लाइफ, राइट। एंड हम उसका परफॉर्मेंस, उसका कंफर्ट, उसका कन्वीनियंस कैसे एनहांस करें ताकि वो जल्दी दौड़ सके, राइट। वी गिव हिम विंग्स सो दैट ही कैन रन फास्टर, दैट्स द लोगो अबाउट। And it is to empower that youth, empower that young population, because we always keep crying कि हमारा workforce efficient नहीं है, हमारे लोग efficient नहीं है। उसमें एक छोटा सा contribution जो हम दे सकते हैं, मतलब if in one meeting I was meeting पीयूष जी गोयल, and I told him कि यार अगर इंडिया में जितने किसान हैं, अगर वो सब टेक्नोस्पोर्ट पहनना चालू कर दे तो इंडिया का फार्म आउटपुट 5% बढ़ जाएगा। So, wow. I mean, that's the kind of impact we can give with enhancing somebody's performance. How can we make Technosport reach the villagers and farmers of... we already have 6,000, more than 6,000 retailers selling our product. Okay. We sell more than 60,000 garments a day. Okay. So, till now we've sold more than, I think, but how many garments. goes to the farmers? As you said, Kisan Nagar Pehne. So, what we saw in year 2016, I told you we pivoted from a sportswear brand to activewear brand. तो हमने देखा हम प्रोडक्ट स्पोर्ट्स के लिए बना रहे हैं, लेकिन काफ़ी जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं वो उस टेक्नोलॉजी से उनके लाइफ में नोटिसेबल डिफरेंस आ रहा है। अच्छा। जैसे कोविड में, मेरे को एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि कोविड में, पोस्ट कोविड, जस्ट आफ्टर कोविड व्हेन वी वर स्लोली ओपनिंग अप, ओके, मेरे को कॉल आता है पौंडीचेरी से एक रिटेलर का जो मेरे से कनेक्टेड है, अच्छा फीडबैक देता है प्रोडक्ट का। उसने मेरे को फ़ोन किया, सर आपका एक फुल स्लीव क्रू नेक टी शर्ट है,
जो मेरे यहाँ बहुत बिकता है, मेरे को जल्दी चाहिए स्टॉक। मैं बोला भाई गर्मी का टाइम है और फुल स्लीव मांग रहा है तू और वो भी मतलब अभी तो सारी दुकानें बंद है, किसी का माल बिक नहीं रहा है, तेरे को माल लेके क्या करेगा तू? दुकान खोलने का किसी को परमिशन ही नहीं है। बोले नहीं सर माल चाहिए वगैरह वगैरह। मैं बोला हाँ हमारा भी फैक्ट्री खुलने का परमिशन आने वाला है, पाइपलाइन में प्रोडक्ट है, आते ही आई विल डिस्पैच टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर तेरे को दे देगा। फिर 10 एक दिन में वो माल निकला फैक्ट्री से। डिस्ट्रीब्यूटर को मैंने फ़ोन कर दिया था कि यार ऐसा ऐसा है, वो रिटेलर पौंडीचेरी का है, वो फ़ोन किया था, जब माल आएगा उसको दे देना। डिस्ट्रीब्यूटर ने बोला सर नहीं नहीं बहुत डिमांड है, मेरे को तो राशन करना पड़ेगा। मैं बोला ये क्या डिमांड आ गया यार, कोविड के बंद के टाइम में क्या डिमांड आ गया। एंड देन वो माल गया रिटेलर का, फिर फ़ोन आया मेरे पास 2-4 दिन बाद, माल जाने के 2-4 दिन बाद, सर मैंने 2 बोरा माल मांगा था, मेरे को 1 बोरा ही मिला। बोला ठीक है 1 बोरा मिला ना, तो रिटेलर ही तो बेच, स्टार्ट तो कर, मेरा अगला लॉट आ रहा है दे दूंगा तेरे को, 15-20 दिन में एक और लॉट निकल जाएगा। बोला नहीं सर वो तो खाली हो गया। मैं बोला क्या हुआ, मतलब 320 पीस एक ही प्रोडक्ट का, छोटी सी रिटेल दुकान है, 2 दिन में कैसे खाली हो गया? बोले ट्रेडिंग कर रहा है क्या? ट्रेडिंग के लिए नहीं दूंगा मैं। बोले नहीं नहीं सर कसम से रिटेल करता हूँ। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने पूछा कौन है यार, कैसे बिका ये माल? बोले सर हमारे एरिया में सारे मछुआरे हैं, तो वो आपका ही प्रोडक्ट पहनते हैं क्योंकि वो इसमें यूवी प्रोटेक्शन है, उनको धूप वो एनी टाइम धूप में रहते हैं, उनके बोट धूप में होती है और उनको बार बार गीले होते हैं, तो आपका प्रोडक्ट बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है, उनका लाइफ बहुत कन्वीनियंट हो गया है, उनका परफॉर्मेंस बहुत इंप्रूव हो गया है, अब वो आप ही का प्रोडक्ट पहनते हैं। और मैंने 2 घंटे के लिए दुकान खोली, एक जने ने फ़ोन किया बाकी अपने दोस्तों को, वो सब आए लूट के ले गए क्योंकि कोविड के टाइम में उनका फिशिंग का काम चल रहा था। हाँ. उनके प्रोडक्ट्स वेयर आउट हो गए। हाँ. उनको वापस रिप्लेसमेंट चाहिए। तो इसीलिए 2 घंटे में सारा माल खाली हो गया। सर जल्दी दो मेरा, नहीं तो मेरे जान खा जाएंगे ये लोग। तो ओवर अ पीरियड वी रियलाइज कि ये जो टेक्नोलॉजीज है, ये जो ब्लू कॉलर वर्कर्स हैं जो मेहनत का काम करते हैं, जिनका एक्टिव लाइफस्टाइल है, उनके लाइफ में ये टेक्नोलॉजी बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट ला रही है। तो दैट इज़ व्हेन वी स्टार्टेड टू स्केल एंड वी स्टार्ट टू बिल्ड फॉर दिस, बिकॉज कि स्पोर्ट्स का बना रहे हम। अभी मैंने मेरे अपार्टमेंट में देखा कि मेरा लड़का है, वो एक डिकैथलॉन का ब्रांड है किप्स्टा, उसके शॉर्ट्स पहनता था। इट्स अ फुटबॉल ब्रांड। एंड उसके काफ़ी फ्रेंड्स जो हैं मेरे अपार्टमेंट में, वो सब वही शॉर्ट्स पहनते थे क्योंकि वो बहुत लाइट वेट था, कन्वीनियंट था, धोने में आसान था, बच्चों को भी कंफर्टेबल लगता था। स्कूल के बाद वो वही पहनते थे, कोई भी फुटबॉल नहीं खेलता था। अ प्रोडक्ट डिजाइन फॉर फुटबॉल बट पीपल यूज इट फॉर सम अदर एप्लीकेशन। तो हमको समझ में आया कि व्हाई नॉट बिल्ड इट फॉर दैट एप्लीकेशन। करेक्ट। तो वी पिवटेड फ्रॉम अ स्पोर्ट्सवेयर ब्रांड टू एन एक्टिववेयर ब्रांड। नाउ वी डोंट मेक एनी स्पोर्ट्सवेयर, अच्छा, मेक ओनली not at all. एक्टिववेयर। Okay. So there is no dedicated sports का बिकॉज वी नो इंडिया इज वेरी वर्सेटाइल। मतलब हमको मन होता है हम क्रिकेट खेलते हैं, अगले दिन हम बैडमिंटन खेलते हैं, अगले दिन हम जिम पे जाते हैं। वो एक्टिव वेयर है तो आई कैन यूज इट फॉर माय एक्टिविटीज। इट इज मतलब हम तो इतना वर्सेटाइल बनाते हैं कि आप पहनो। जैसे अभी रिसेंटली वी डेवलप्ड न्यू प्रोडक्ट कॉल्ड ड्यूराकूल प्लस, जिसमें प्रोडक्ट अगर आप टक इन नहीं करते हो शर्ट को, टी शर्ट को या शर्ट को टक इन नहीं करते हो, विच 90% ऑफ इंडिया डजंट, तो वो नीचे से एकदम कैजुअल ट्राउजर जैसा दिखेगा। लेकिन है वो ट्रैक पैंट, काफ़ी लाइट वेट है, फ्लेक्सिबल भी है, ड्यूरेबल भी है। सो दैट प्रोडक्ट यू कैन वेयर इट टू द जिम। It has good moisture management, good UV protection. It will perform very well. Correct. You can wear it for cricket, sport. You can wear it to your office. You can wear it for a movie. You can wear it to a mall. So it looks like a little trouser. Casual trouser. Yeah. You can wear it for sleep. It will perform well in every application. Wow. So it's a very versatile product. Versatile product. So we are designing for that. क्योंकि India में product is already out. Yeah, already out. It is one of the top sellers on our website. Wow. We are selling more than 1 lakh pieces a month of that product. So, मतलब इंडिया में यू कांट एक्सपेक्ट द कंज्यूमर्स टू बाय डिफरेंट प्रोडक्ट्स फॉर डिफरेंट यूज केसेस। हमको थोड़ा वर्सेटैलिटी चाहिए भाई, यहाँ भी चल गया वहाँ भी चल गया टाइप्स। आपके वेबसाइट पे क्या रिपीट रेट है? बिकॉज दिस इज समथिंग विच पीपल आर यूजिंग फॉर डे टू डे पर्पज ऑल्सो, देयर डेली वेयर, एक्टिव वेयर। सो दीज पीपल ऑफ कोर्स वंस दे बिकम लाइक ये जो मछुआरे थे या ऑनलाइन जो आते हैं, how regularly do they come back and purchase? I mean, blue collared workers typically buy the products on general trade. Retail stores, हाँ. General trade, छोटी दुकानों में लेते हैं। जो white collared workers हैं, बैंक एम्प्लॉयज़ हैं, IT वर्कर्स हैं, हम जैसे जो रेगुलर जॉब्स पे जाते हैं, they buy online. उनका एप्लीकेशन यूज केस जिम है या घर पे पहनना है, उनका एप्लीकेशन जो है, क्योंकि जनरली उनका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता, उनका एक्टिव लाइफस्टाइल नहीं होता। करेक्ट। बट उनका भी रिपीट रेट बहुत अच्छा है। मतलब आर रिटेल स्टोर्स वी आर सीइंग कन्वर्शन रेट ऑफ मोर देन 90%।
मतलब 10 लोग स्टोर पे आते हैं तो 9 लोग खरीद के जाते हैं. वी आर सीइंग एवरेज कार्ट साइज ऑफ 4 एंड अबव. मतलब जो भी अंदर आता है वो 4 गारमेंट कम से कम लेके जाता है. ओह नाइस. तो इवन on own website the repeat rate is very high. Within the 6 months a lot of customers are coming back. So I think we have a very good brand love. नहीं तो बिना मार्केटिंग स्पेंड के हम इतना बड़ा ब्रांड, दिस ईयर आवर टॉप लाइन विल बी मोर देन 400 crores and this 400 crore top line is on the trade value. It is not on the retail value. Of course. It's not GMV. Yeah, it's not the GMV. It is your trade value. It's my trade value. So this year we'll be selling more than 1.8 crore garments. Amazing. So there is a lot of brand love, a lot of customer love. इसीलिए we are able to sell that much. Okay. I'll be coming back to this numbers part also. I'm little interested in knowing that. But before that, tell me about this, celeb-led brands are there, like HRX, 18, Virat Kohli, Hrithik Roshan, etc. What kind of competition do you face from these brands specifically? Because of course there is a very strong brand ambassador and a celeb backing that, owning that, or an investor in that. So of course that initial sales that happens probably quicker. So what kind of competition do you guys face, and how do you work to neutralize that or to make sure that your product still stands out? More specifically against this celeb-led brands. नहीं मतलब उतना कोई बड़ा सेलिब्रिटी ब्रांड इंडिया में अभी तक बना नहीं. उतना बड़ा वॉल्यूम किसी का है भी नहीं, तो हमको एक वरी का फैक्टर बना नहीं है. अच्छा. हाँ, द प्रॉब्लम इज इंडिया इज अ सप्लाई प्रॉब्लम, इट इज नॉट अ डिमांड प्रॉब्लम. आप बना लोगे, आप डिमांड जनरेट कर लोगे, आप बेच दोगे, लेकिन आप सही प्रोडक्ट नहीं बनाओगे, सही भाव में नहीं बनाओगे तो वो स्केल नहीं होगा. तो ये HRX वगैरह दे आर नॉट दैट बिग. हाँ मतलब रीजनेबल, मतलब HRX इज रीजनेबली बिग. मतलब आई एम नॉट श्योर अबाउट देयर टॉप लाइन एक्सेट्रा, बट रीजनेबली बिग. बट देयर मार्केट इज डिफरेंट, हमारा मार्केट थोड़ा अलग है. ओके. इसीलिए हमारे मार्केट में ऐसा कोई सेलिब्रेटेड ब्रांड नहीं है. That is more towards the first. If we break India into India 1, India 2, India 3, India 4, 4 पिरामिड के 4 हिस्से कर लो आप, तो वो नंबर 2 के लिए रिलेवेंट है. हम नंबर 3 और 4 के लिए रिलेवेंट है. ओके. इंडिया 1 क्या होता है थोड़ा? मतलब इंडिया 1 मतलब जो समझ लो कि जिसका आप मान लो कि साल का 15 लाख के ऊपर जिसका इनकम है वो इंडिया 1 हो गया. हाँ, हाउस होल्ड इनकम. समझ लो कि 7-8 लाख के ऊपर इंडिया 2 हो गया. ओके. हाँ, और 3 से 7 लाख या 4 से 7 लाख जो है इंडिया 3 हो गया, और बिलो 4 लाख जो है इंडिया 4 हो गया. ओके, गॉट इट. तो यू आर मोर इन दैट 3 and 4 category, and these guys are more India 3 into, and India 4. Yeah, HRX would be more to India 2. India 2. हाँ. India 1 Nike Adidas हो गया. Nike Adidas type हो गया. हाँ. Okay, got it. Well, help me understand little bit if you can share on a not on a actual price, but can you help me understand how does your unit economics work? Like let's say अगर आप कोई भी टी-शर्ट पकड़ लो जो आप for example 100 रुपये, we'll take with 100 rupees or 1000 rupees, whatever you're comfortable. Can you help me understand, and it would help the viewers also, कि आप उसमें से कितना कॉस्ट में जाता है, मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में जाता है, then how much do you spend on logistics, distributor margin, etc. So अभी हमारा प्रोडक्ट जो है तकरीबन 90% वी सेल ऑन जनरल ट्रेड. ओके. तो जनरल ट्रेड में जो हमारा प्रोडक्ट है वो 43% डिस्काउंट टू रिटेलर्स जाता है. 43% डिस्काउंट रिटेलर्स को 43% मिलता है. रिटेलर्स 15-20% तक डिस्काउंट देते हैं कंज्यूमर को. तो अगर MRP 100 रुपये है, हाँ, तो MRP में से 57 रुपीज़ में रिटेलर को जाता है. रिटेलर 57 रुपीज़ रिटेलर के पास जाता है. नहीं, 57 रुपीज़ में रिटेलर को बेचते हैं हम. आप बेचते हो 57 में. ओके, गॉट इट. और फिर रिटेलर, हाँ, रिटेलर जो है वो 15-20%. जनरल ट्रेड है, छोटी दुकानें हैं, वहाँ पे आप MRP पे तो माल खरीदते नहीं हो, आप थोड़ा सा नेचुरल बार्गेन होता है, 10-15% रिटेलर उस पर डिस्काउंट देता है. तो रिटेलर जो चीज़ 60 रुपये में खरीदता है फॉर एग्जांपल, उसको वो 80 रुपये में बेचता है, 80-85 में बेचता है. तो दैट इज द प्ले देयर. एंड हमारा कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वुड बी रफली 42 रुपीज़ फॉर दैट प्रोडक्ट. So you sold it at 57. हाँ, 42. उसके बाद हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस होता है, मार्केटिंग एक्सपेंस होता है, कॉर्पोरेट कॉस्ट होता है, फिक्स कॉस्ट वगैरह. हाँ, वो सब उसके ऊपर आता है. तो वो 8-9 रुपए के आसपास शायद से होगा, 10 रुपए पकड़ लेते हैं. So that comes to 52 and you sold it at 57. So 10-12% EBITDA है हमारा. 5 rupees is net probably that 10-12%. Okay. 10-12% का EBITDA है हमारा.
And this same thing applies on the website also and नहीं, on the वेबसाइट retail? के डायनामिक्स अलग है, वहाँ Website के पे थोड़े तो अलग। लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है, रिटर्न कॉस्ट है. आई मीन ऑनलाइन इन इंडिया is still, I would say, it's long way to go to before it can mature. Is it? Okay. Why do you say so? Because there are so many brands and like people have built brands just selling online on website and on Amazon and marketplaces. Why do you Very think so? few online brands have scaled, at least in apparel, for that matter. ऑनलाइन ब्रांड्स वो 100 करोड़ तक पहुंच जाते हैं, उसके ऊपर उनको स्केल करना बहुत मुश्किल हो जाता है. क्योंकि मतलब ऑनलाइन का जो कंज्यूमर सेगमेंट है वो अभी भी काफ़ी छोटा है. Okay. अभी भी अपैरल जो है वो टच एंड फील वाला कॉन्सेप्ट है. तो कस्टमर जो है पहन के ट्राई करके लेना चाहता है. जैसे आप ऑनलाइन कुछ 4 चीज़ें मंगा लो, आपको टाइम रहा तो आपने ट्राई किया चारों को, 1-2 को आपने रिटर्न किया. एक तो वो लॉजिस्टिक्स का कॉस्ट है, विच इज़ नॉट अ फीजिबल थिंग. और अगर आप रख भी लेते हो लेकिन आप पहनोगे नहीं, आप 2 को ही पहन पाओगे, 2 पड़ा रहेगा. उससे अच्छा आप रिटेल शॉप में जाओ, आप पूरा प्राइस भी दे के लो सस्ता. ऑनलाइन तो काफ़ी लोग इसलिए लेते हैं क्योंकि डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है. Discount ज़्यादा मिलता है. हमारे ब्रांड का MRP रीजनेबल है, हम डिस्काउंट तो देते नहीं. Correct. तो इसीलिए जो है ऑनलाइन में वही कस्टमर लेता है जिसको कन्वीनियंस चाहिए, Okay. जिसके लिए कन्वीनियंस इंपॉर्टेंट है. बट इंडिया में ऑनलाइन को मतलब ऑनलाइन का प्ले तो वही है, कन्वीनियंस. Absolutely. लेकिन अपैरल में ऐसा हो गया ऑनलाइन में कि ऑनलाइन सस्ता है और ऑफलाइन महंगा है. इस चक्कर में कंज्यूमर लेने लगा, विच इज़ नॉट राइट. मतलब विच इज़ नॉट द राइट बेनिफिट दैट यू आर गिविंग टू द कंज्यूमर. यू आर गिविंग कन्वीनियंस टू द कंज्यूमर एंड दैट इज योर USP, right? Or you're giving wide range. Consumer may not get that wide range in a retail shop. So you're giving few benefits online, and the consumer should know कि he's getting those benefits. And वो जो logistic का cost है, all of that has to be borne from the consumer. Correct. At the end of the day, you have to cover it from him. Yes. So that's why online, I think, is still time for it to mature. I think quick commerce is coming, omni-channel is coming. So eventually retail stores will get connected to omni-channel and quick commerce so that the retail stores will fulfill those orders. You think so that will happen? Yeah, that's already happening. Decathlon has done that very well in India. Okay. Few other brands are also doing. Uniqlo is doing. So many brands are trying to do that, and it's happening in China. It's very relevant. Okay. Omni-channel is बहुत successful in China. So it won't be a matter of, it'll be a matter of time. I think India also omni-channel is only going to, like, you have to be present online and offline. You have to be present at retail stores, those touch points, and then of course on quick commerce. And if you're a good on product, you should be accessible. You should be aspirational. So you have to fill those. That is a given. How do you look at online and offline in Technosport as a founder? What is your strategy? How do you try to, because you said 90% right now you guys have retail. Your business comes from offline or retail. GT. So model. GT is for multi-brand outlets. Yeah. तो हम माल सुपर स्टॉकिस्ट को देते हैं, सुपर स्टॉकिस्ट फिर रिटेलर को देता है. करेक्ट. सो दिस इज और वो रिटेलर तो अलग अलग ब्रांड रख रहा है, अलग ब्रांड अलग माल रख रहा है, अलग अलग माल रखता है, अलग अलग ब्रांड रखता है. करेक्ट. द आइडिया इज कि हाउ डू वी डू सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन फॉर माई रिटेलर. हाउ डू आई कनेक्ट माई रिटेलर विथ माई ब्रांड. हाउ डू वी पुट अ बोर्ड ऑन द रिटेलर शॉप. हाउ डू वी डू हाइपर लोकल मार्केटिंग about the product, but we connect that hyper local marketing to the retailer. Okay. So this is our vision for online. How does it become omni? Even in general trade. So you find the customer through online, but that customer gets directed to the retail shop who's selling my product. Okay. जैसे हमने एक प्रोडक्ट का कोई समझ लो इन्फ्लुएंसर है, उसने वो प्रोडक्ट का कोई वीडियो बनाया, प्रोडक्ट को एक्सप्लेन किया, कंज्यूमर में डिज़ायर जगह प्रोडक्ट के लिए, और हमने उसमें ऑनलाइन का ऑप्शन भी दिया और बताया कि आपके नेबरहुड में ये दुकान है, यहाँ पे भी आप ले सकते हो. एंड जब वो इन्फ्लुएंसर ऐसे दिखाता है दुकान का नाम, वो दुकान का नाम जो है एरिया के हिसाब से हम चेंज हो जाता है. सो वी बिल्ड दैट टेक वेयर जैसे आप अगर थाने में हो, कोई वाशी में है, तो दोनों को वीडियो वही दिखेगा, लेकिन दुकान का नाम अलग अलग दिखेगा जो उसके नेबरहुड का दुकान है. हाँ, गॉट इट. दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू आर focusing on optimizing your retailer
by getting the customer, by finding the customer, right customer, and giving it to the retailer कि भाई तू जा वहाँ से ले, because my already inventory is lying with him. I don't want to spend additional money for you to come on my website and then purchase there for me to do delivery, logistics. So ये जो e-commerce है, हाँ, इसका डायमेंशन बदल रहा है. okay. एज वी स्पीक इसका डायमेंशन काफ़ी बदल रहा है. जैसे डिकैथलन है फॉर एग्जांपल. डिकैथलन पहले उनके स्टोर्स होते थे शहर के बाहर बड़े बड़े. अब वो शहर के अंदर छोटे छोटे स्टोर्स खोल रहे हैं और वो सेल्फ पिकअप वाला कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं कि भाई उस स्टोर में ये इन्वेंट्री पड़ा है, आप उधर से ले लो. वो ऑलरेडी उसको ऑर्डर को प्रिपेयर करके रखते हैं कि ताकि आपका टाइम नहीं लगे, तो आपको कन्वीनियंस भी मिल जाए, आपको So you ordered it online and they will keep it ready. You come at your nearby close store and you purchase it. In fact, in China, they've started a model where they have trial rooms ready. So you select and they will have a hanger stand with those 10-12 products in the trial room. Oh, okay. And that trial room is slotted for your time. Wonderful. So you go to the trial room, open the trial room. Already what you want to try is put in that trial room. You wear it, you bill what you like and go out. हाँ, वो थोड़ा इंडिया में I think it's difficult to. And those are placed in metro stations. Ah. So you know that you're going to commute to work at so and so time, and you're going to come back at so and so time. So you can choose your time slot. Okay. Coming to this China part, right? We were just talking, before this. You mentioned about the China Plus strategy, right? What is this China Plus and how is it going to impact Indian startups or Indian entrepreneurs? I think India is in its demographic dividend. We call it Amrit Kal. We have a larger working population than the dependent population. Correct. तो इंडिया में बहुत पावर है. Okay. Despite all our inefficiencies, we are the largest growing large economy in the world. That is because of our demographic dividend. इतने लोग काम करने वाले हैं जो वेल्थ जनरेट कर रहे हैं, काम जनरेट कर रहे हैं, एफर्ट दे रहे हैं, उसका कोई ना कोई रिजल्ट आ रहा है जिससे हमारा जीडीपी ग्रो हो रहा है बहुत फास्ट. अब चाइना जब डेमोग्राफिक डिविडेंड में था तो दे यूटिलाइज देयर वर्कफोर्स इन द फुल बाय डूइंग अ लॉट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फॉर द वर्ल्ड. दे बिल्ड देयर एंटायर इकोनॉमी विथ मैन्युफैक्चरिंग. Okay. इंडिया इज मोर सर्विसेज ड्रिवन. इंडिया बोलता है कि हाँ वी आर सर्विस ड्रिवन इकोनॉमी. हम सॉफ्टवेयर देंगे, हम स्पेशलाइज्ड डिज़ाइनिंग सर्विसेज वगैरह देंगे पूरे दुनिया को, और हम उसमें बहुत स्ट्रांग हैं और वो काफ़ी अच्छा हमने किया है. कुडोज टू अस, वी हैव डन ग्रेट जॉब इन सर्विसेज. बट कैन यू एम्प्लॉय सच लार्ज अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन इनटू सर्विसेज विच इज़ कमिंग इनटू, मतलब अभी काफ़ी बड़ा पॉपुलेशन, हमारा यंग पॉपुलेशन नए जॉब्स के लिए आ रहा है. तो हम क्या इन सबको सर्विसेज में एम्प्लॉय कर सकते हैं? क्या दुनिया में इतनी रिक्वायरमेंट है सर्विसेज की? It's a large gap. Also, our farm output is very low, and very large population of the population, a very large population is employed into farming. Agriculture. Now, a lot of agri-tech startups are coming, and so many things is happening in agriculture where the farm output will rise drastically. So, would you need so many people in agriculture? No. You'll have to find other jobs for them. And that's when manufacturing will play an important role. Okay. And world is also looking for Chinese alternates to manufacturing. Okay. वो बोले वियतनाम, इंडोनेशिया, बट उनके पास उतना पॉपुलेशन नहीं है. I think बांग्लादेश has its own problems now. Yeah, now it has its own. हाँ, तो मतलब उनके लिए इंडिया के अलावा और कोई अल्टरनेट नहीं है. बट इंडिया शुड प्रिपेयर इटसेल्फ. इंडिया शुड गियर अप. मतलब अब हर यंग एंटरप्रेन्योर का एस्पिरेशन है मैं ब्रांड बनाऊं, लेकिन उतने सारे ब्रांड्स को बना के कौन देगा माल? राइट. हम बनाएगा कौन? राइट. या दुनिया भर को माल चाहिए, उसको बनाएगा कौन? तो मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत सारे बिजनेसेस बन सकते हैं. ऐसा नहीं कि ब्रांड बनाना है. चाइना ने बहुत काम किया मैन्युफैक्चरिंग में. आई नो लॉट ऑफ पीपल हु स्टार्टेड वेरी स्मॉल एंड बिकम बिलियनर्स जस्ट इन मैन्युफैक्चरिंग, एंड दे हैव रेज्ड फंड्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग. दे हैव डन पी एंड वीसी एक्टिविटी इन मैन्युफैक्चरिंग. काफ़ी हुआ है चाइना में. व्हाई डू यू थिंक बट इंडिया में भी हो रहा है फार्मा में वगैरह. पर ये फार्मा या मैन्युफैक्चरिंग में बहुत लेट स्टेज पे पीईज आते हैं, ऑफ कोर्स, बिकॉज नहीं, फार्मा में अर्ली स्टेज में भी इंडिया आ रहा है. अच्छा. फार्मा में आ रहा है, केमिकल्स में आ रहा है, एग्रीटेक में आ रहा है. मैन्युफैक्चरिंग में agri is not manufacturing, but agri-tech wouldn't be manufacturing. But so my question is more that in manufacturing, typically over the last 10 to 15 years,
जहाँ पे हमने मोर प्रोमिनेंटली टेक स्टार्टअप्स में ही फंडिंग देखा है. Why manufacturing funding has not picked up the way it is in China that you're describing? In India, why it hasn't picked up? मतलब इंडिया में क्या है ना कि जैसे आप पैसा किसको मिलता है, अच्छा टैलेंट होता है उसको मिलता है. इंडिया में अच्छा टैलेंट कहाँ है, IIT IIM से आते हैं, आपके SPGN से आते हैं और सब जगह से आते हैं. और वो सारा टैलेंट क्या कर रहा है, वो सारा टैलेंट कर रहा है कि हम सर्विसेज बनाएंगे, हम ब्रांड बनाएंगे. अच्छा. तो उनको फंडिंग मिल रही है. अगर अच्छा टैलेंट जाके मैन्युफैक्चरिंग करेगा उसको भी मिलेगा. ओके. तो इट्स अ प्रॉब्लम. ये चिकन एंड एग स्टोरी है कि पहले इन्वेस्टर्स आएंगे कि पहले लोग आएंगे. हमारे अंदर एस्पिरेशन बनना चाहिए कि पर ऐसा यूथ, डू यू थिंक कि यूथ को मैन्युफैक्चरिंग में जाना नहीं है क्योंकि बहुत हेडेक है, बहुत ऑपरेशनल वर्क है, लेबर के साथ डील करना है, प्लांट में बैठे रहना है 24 घंटे. देखो भाई, अपॉर्चुनिटी है तो प्रॉब्लम तो सॉल्व करने पड़ेंगे ना. हाँ. उसी के लिए तो एंटरप्रेन्योरशिप है. एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या है? बट प्रॉब्लम सॉल्व करना. आज के यूथ को दूसरे टाइप के प्रॉब्लम सॉल्व करना है जो टेक से हो सकता है. उनको प्लांट में नहीं बैठना रहना है. शायद ऐसा हो सकता है. आई एम जस्ट आस्किंग योर ओपिनियन बिकॉज़ यू हैव बीन. बट आप सारे प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर सकते ना. हाँ. आपको अगर ऐसा प्रोडक्ट बनाना है तो कोई ना कोई तो मैन्युफैक्चर करेगा. हाँ. और जब आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बनाओगे तो बेचोगे क्या, ब्रांड कैसे बनाओगे? तो जैसे आप फुटवेयर ले लो. इंडिया में फुटवेयर जो है, जितने भी बड़े ब्रांड्स आप देख लो, आप देख लो कैंपस बोल के एक बड़ा ब्रांड है, लिस्टेड कंपनी है. रिलैक्सो बोल के एक बड़ा ब्रांड है, लिस्टेड कंपनी है. हमारे साउथ में वॉकरू बोल के एक बहुत बड़ा ब्रांड है, साल का 1.5-2 हज़ार करोड़ कर रहा है. दे आर डूइंग ब्रिलियंट फुटवेयर, दे आर गिविंग अमेजिंग क्वालिटी एट अमेजिंग प्राइस. वॉकरू, अमेजिंग क्वालिटी एट अमेजिंग प्राइस. बट दीज आर ऑल डीपली बैकवर्ड इंटीग्रेटेड इनटू मैन्युफैक्चरिंग. Now you've recently heard a brand called Agilitas. He was the CEO of Puma. He came out of Puma and started his own company called Agilitas. Yeah, I read about it. And he raised money for manufacturing. Because in Puma he realized that India is a supply problem, not a demand problem. He invested that money into Mochiko Shoes, which was a manufacturing company. So there are a lot of manufacturing, and it was a startup. So he was able to raise a lot of capital for investing into manufacturing. Because he, being in the industry, he realized India is a supply problem, not a demand problem. अब यहाँ के प्रॉब्लम्स के लिए आपको सॉल्यूशंस चाहिए तो आपको सप्लाई क्रैक करना तो पड़ेगा. जो इंसान एक ब्रांड बनाना चाहता है, वेदर इट्स अपैरल, फुटवेयर, कुछ भी आप ले लो दूसरा आइटम, राइट? इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रांड इन दैट, इफ यू वांट टू क्रिएट अ ब्रांड इन द वैल्यू सेगमेंट. हाँ. क्योंकि जो क्वालिटी, जो कॉस्ट में जो हमारे इंडिया 3 और इंडिया 4 का जो एस्पिरेशन है, और इंडिया 3 और इंडिया 4 मिला के 65-70% पॉपुलेशन है यार, विच इज़ अ वेरी लार्ज टैप फॉर यू टू टैप. अगर आपको उसको टैप करना है तो आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस करने पड़ेंगे, सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़ेंगे. But you will have to start from manufacturing before you focus on making it a brand, before you focus on getting the right sales, distribution. You need to have the right manufacturing. That is the core importance, and that is what he has to focus on. To get into at least I know I'm myself doing a footwear startup. Okay, wonderful. So one of my brothers, he took a small exit in our previous round, and he is building a footwear startup. Wonderful. And he's not building a brand. He's building the manufacturing now. Oh, okay. So starting from manufacturing, slowly, steadily, you get into the value chain and create that front end, Yes. which is the sales, distribution, and brand. You can have multiple strategies. You can start from the top, go backward integration. Of course. You can start from the bottom, go forward. But manufacturing is important to get into. You cannot just source and sell it. वो method तो चला क्योंकि गया. इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग एफिशिएंट नहीं है. हाँ. और चाइना महंगा होता जा रहा है. आप कैसे ब्रांड बनाओगे? Okay, got it. प्रोडक्ट ब्रांड, कंज्यूमर ब्रांड कैसे बनाओगे? All right. Tell me something that you have so many activewear products, right? Have you probably secretly thought about making a lazy day kind of a product for your, normal casual wear launching kind of a thing? नहीं, lot of our products are casual wear already. हाँ. So our products are very good, as I said. मैंने एक versatile product बनाया जो सोने के लिए भी अच्छा है, लाउंजिंग के लिए भी अच्छा है. तो जैसे अभी लास्ट ईयर एक ट्रेंड आया कार्गो पैंट बनाना. बहुत बड़ा ट्रेंड था. हमारी स्टाइल टीम आई, सर हमको कार्गो पैंट बनाना है. आई टोल्ड टू माई फैब्रिक टीम, यार कार्गो पैंट बनाना है, क्या करना चाहिए? तो स्टाइल टीम ने बताया कि कार्गो पैंट का ये सिलेट है, माचो दिखना चाहिए, हेवी दिखना चाहिए. लेकिन फैब्रिक टीम बोलता है सर हेवी कपड़ा बनाएंगे तो उसमें स्ट्रेच नहीं होगा,
वो बहुत डिफ़िकल्ट होगा वेयर करने के लिए, परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा उसमें, फ्लेक्सिबल नहीं होगा, उसको धोगे तो बहुत रिंकल पड़ेंगे, आयरन करना कार्गो पैंट का बहुत मुश्किल है, आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो बैग में रखने की जगह नहीं होगी, वॉशिंग मशीन में आपका मतलब लोड बढ़ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन क्या है? हाउ डू वी बिल्ड टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी with which we make the garment look heavy, but it is actually light. It is actually flexible. It is actually wrinkle free. It's actually, having all the properties of moisture management, UV protection, odor free. How do we make a product? So we developed a product, we call it Tech Light. And we are selling about 1 lakh garments a month for that product. Okay. So it's a solution based approach. Got it. Any entrepreneur will have to see that, pick that solutions based approach. Got it. What is the funniest customer incident or a feedback that you would have received, and some kind of an incident that has happened with a customer? Funniest, which is like very interesting. कि ऐसा आपने सोचा नहीं था. हाँ, I mean, the fisherman story was something like that, and we've seen many incidents like that. जहाँ पे हमने देखा है कि यार सर, जैसे माय अंकल ड्यूरिंग कोविड, मतलब कोविड से पहले हमने एक अंडरवेयर का प्रोटोटाइप बनाया, और हमने सारे डायरेक्टर्स को और सारे जो टॉप लोग हैं उनको एक यूज़र एंगेजमेंट प्रोग्राम होता है जहाँ पे हम सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। ऑब्जेक्टिव एनालिसिस तो हम लैब में करते हैं जहाँ पे लैब डेटा देता है, फिर हम सब्जेक्टिव एनालिसिस करते हैं। जैसे हम 50 गारमेंट बनाते हैं जिसमें 25 गारमेंट में हम टेक्नोलॉजी डालते हैं, 25 में नहीं डालते हैं, वो 50 लोगों को देते हैं, उनका फीडबैक देते हैं कि भाई जिसको नहीं मिला टेक्नोलॉजी और जिसको मिला उसको नोटिस होता है कि नहीं होता है। तो अंडरवेयर बनाया हमने सिंथेटिक प्रोडक्ट का जो हाई परफॉर्मेंस था। मेरे अंकल ने बोला यार अंडरवेयर तो बहुत सेंसिटिव चीज़ हो गया, तू लाख रुपया देगा तो भी मैं नहीं पहनूंगा। मैं बोला नहीं, यूज़र एंगेजमेंट प्रोग्राम में आप एनरोल्ड हो, आपको तो पहनना पड़ेगा, आप थोड़ा अपना इनिशियल इनहिबिशन छोड़ के आप पहनो। उन्होंने पहन लिया, फिर आ गया कोविड, प्रोडक्शन नहीं हो रहा था वो प्रोडक्ट का, और उसके बाद हमारे पास कैपेसिटी कम थी, हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स बना रहे थे काफ़ी टाइम तक, उस प्रोडक्ट को हमने बैक बर्नर पे डाल दिया। वो हर 15 दिन में मेरे को आके पूछते हैं कब आ रहा है, कब आ रहा है, कब आ रहा है, बिकॉज द प्रोडक्ट वॉज सो गुड दैट इट हैड ट्रांसफॉर्म्ड हिज लाइफ। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हमारे साथ होते हैं इन डे टू डे लाइफ। अभी लास्ट ईयर बहुत बड़ा डिमांड आया, मेरी स्टाइल टीम और मेरे जो डिमांड टीम है, सेल्स टीम, वो मार्च में ऑर्डर लिखा रहा है स्वेट शर्ट्स का, मुंबई में, चेन्नई में। मैं बोला समर आ रहा है यार, स्वेट शर्ट क्यों लिखा रहे हो? बोले सर ट्रेंड है सर, स्वेट शर्ट ही चाहिए, यूथ को स्वेट शर्ट ही पहनना है। मैं फैब्रिक टीम के पास गया, बोला भाई प्रॉब्लम तो बड़ा है, स्वेट शर्ट दिखना चाहिए, देखने में स्वेट शर्ट लगे, लेकिन मुंबई की गर्मी में आदमी कंफर्टेबल हो पहन के, करेक्ट, डिज़ाइन करो। तो ऐसे बहुत फनी चीज़ें होती रहती है और हम उसका सोल्यूशन निकालते रहते हैं। फनी है लेकिन एप्लीकेशन बड़ा है, राइट। यू नो, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग that you guys have done after reaching this scale is that you have got a complete professional team, which is a CEO, etc. जो एक transition होता है from a founder-led company to a proper CEO and CMO, etc. Proper एक professional-led company. So how did this transition happen? When did you think that now you need someone professional to run this? I don't know how exactly your role shapes up now. हाँ मतलब, but ये आपको कैसे लगा कि अच्छा अभी ये ट्रांजिशन में जाना चाहिए हमें? तो ये भी बहुत फनी स्टोरी है, इंसिडेंट है। प्लीज बताइए। पुष्पेन इज द CEO. He was working in some other company which was much larger than my company, and they had interest to pick stake in my company. Oh, okay. So they found that we've cracked manufacturing and we built a decent brand. So they wanted to acquire us, acquire majority stake in us, and take our brand online. हमारा brand online नहीं था, एंड उनका डबल ब्रांड पोजिशनिंग हो जाता, एक प्रीमियम ब्रांड, एक वैल्यू ब्रांड, वैसा उनका प्रोपोजिशन था। करेक्ट। तो उसमें मैंने देखा कि यार हमको मेजॉरिटी नहीं देना अभी, हमारा पोटेंशियल अभी भी है और वी वांट टू कीप इट दैट वे। बट हमको ये समझ में आया कि प्रोफेशनल्स कितने अग्रेसिव हैं और उनका थॉट प्रोसेस ग्रोथ का किस तरफ है। एंड पुष्पेन वॉज एबल टू कन्विंस मी एट दैट टाइम कि हमको ऑनलाइन भी बेचना चाहिए, हमको सारे चैनल्स में एक्सेसिबल होना चाहिए। तो मैंने फिर पुष्पेन को ऑफर किया कि वाई नॉट यू बिल्ड इट। तो हमने बैंगलोर में कॉर्पोरेट ऑफिस किया, एंड पुष्पेन इज लुकिंग इनटू फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इन न्यू एज वर्टिकल्स। ओके।
कि भाई जो हमारा चल रहा है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, R&D, जनरल ट्रेड, ये हम कर रहे हैं, ये हम जैसा कर रहे हैं, जैसा ग्रो कर रहे हैं, स्केल कर रहे हैं, ये हमारा सेट है, ये हम कर रहे हैं। बट जो नए वर्टिकल्स हैं ये आप बिल्ड करो। तो हमारे एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट्स हैं, हमारे ऑनलाइन हैं, वो सब वो बिल्ड कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम यू नो व्हेन वी वांटेड टू रेज कैपिटल, वी वांटेड टू बिल्ड अ फाइनेंस टीम, वी वांटेड टू प्रेडिक्ट, डू फाइनेंशियल एनालिसिस, वी वांटेड टू डू ट्रेंड एनालिसिस। सो मेनी थिंग्स दैट द बैंगलोर टीम इज डूइंग। अभी जैसे मैंने आपको ये आइडिया बताया ऑमनी चैनल का, जहाँ पे हम रिटेलर के लिए हाइपर लोकल कर रहे हैं, ये सब आइडियाज वो लोग जनरेट कर रहे हैं। हाँ, तो ये फ़ायदा हो जाता है एक प्रोफेशनल प्रॉपर टीम आने का कि दे कैन थिंक लिटिल बिट आउट ऑफ द बॉक्स. आई थिंक समटाइम्स एज अ फाउंडर यू गेट कंप्लेसेंट, too much, स्पेशली 17-year-old फाउंडर है, 15 साल के बाद तो आदमी कंप्लेसेंट हो जाता है थोड़ा. हाँ, एंड यू गेट टू मच इन योर प्रोडक्ट. आप इतना देख चुके हो, इतना कर चुके हो अभी कि आपको सूझता नहीं नया क्या करे. तो आई थिंक दैट फ्रेश एनर्जी कैन कम इन अ तो प्रोफेशनल. बैंगलोर गाइज आर वेरी मतलब काफ़ी जुगाड़ू लोग हैं. उनको पता है कि ये सॉल्यूशन जो है हम कान ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे कैसे पकड़ना करके उनको पता है. हाँ, तो इट्स अ गुड थिंग टू हैव. मतलब तो अभी आपका क्या रोल होता है? तो आई एम लुकिंग एट यू नो द बैक एंड, मतलब जहाँ पे वी आर सेटिंग अप अ न्यू प्लांट विच इज योर कोर स्ट्रेंथ. विच इज़ माई कोर स्ट्रेंथ. तो एक नया मेगा फैक्ट्री हम बना रहे हैं, तो मेरा सारा टाइम उधर ही निकल रहा है अभी. Interesting. All right, we'll move to the last leg, which is the rapid fire round. So be quick, be rapid, right? First question: top learning a new age founder should learn from you. One tip. Stay persistent. Okay. Very good. Second one tip to build a brand in a commoditized segment like an apparel, footwear. These are little commoditized. So one tip how you can make a brand. That's a supply repair market. Focus on supply. Yeah, to create a brand. Yeah, to create a brand. Okay, that's very interesting because anyone else would of course say you need to invest more in marketing, in sales, brand ambassador. नहीं, don't build cost at that point, क्योंकि तो कंज्यूमर का क्या पॉकेट साइज उतना ही है. अब उसमें आप उसको मार्केटिंग का खर्चा करोगे तो वो तो कंज्यूमर से ही निकालोगे ना, किधर से निकालोगे. Correct, got it. And third one, when should one approach an investor? When he thinks that he can scale very fast, he already has the formula and a product market fit जो उसके पास रेडी है, और लग रहा है कि अब तो स्केल करना है. अब मैं जो है जो प्रोडक्ट मैं बना रहा हूँ उसका इतना डिमांड है कि मेरे को स्केल करना है. अब उसके लिए कैपिटल चाहिए. दैट इज द राइट टाइम टू अप्रोच द इन्वेस्टर, प्रोफेशनल इन्वेस्टर. Absolutely, got it. ऑफ कोर्स टेक में वगैरह डिफरेंट है, मैं कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरिंग की बता रहा हूँ. Interesting. Last question, what is your vision for Technosport in the next 3 to 5 years? We are on course to be among the most sustainable global brands. Okay. Our carbon footprint is extremely low, perhaps the lowest in the world, but we had to validate that. All of our new plant that we are building, mega factory, is running on green energy, is running on solar energy and biomass. There's no coal. Wow. So all our suppliers are zero liquid discharge. We don't throw even a single drop of water outside our factories. जितना भी पानी हम यूज़ करते हैं हमारे प्रोडक्ट को डाई करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए, हम रिसाइकिल करते हैं, रीयूज़ करते हैं. कुछ भी बाहर नहीं फेंकते. तो वी वांट टू बिकम द मोस्ट सस्टेनेबल ब्रांड इन द वर्ल्ड. Okay. बट वी डोंट वांट टू मार्केट सस्टेनेबिलिटी. मतलब वो हमारा क्लोज टू हार्ट है. वी डोंट वांट टू मेक इट अ कमोडिटी टू सेल इट टू द कंज्यूमर. Correct. इट्स आवर कमिटमेंट टू आवर चिल्ड्रन. Correct. So that is, we want to set sustainable benchmarks. We want to be the most loved brand in the country by delighting customers, giving more than their expectation all the time. So this is what we want to do. Yeah. Got it. And any number, revenue or something in the next 3 years? Numbers तो I think आ जाएंगे. That is not the bigger challenge. The bigger challenge is कि भाई आप घूमने जाते हो, अब्रॉड जाते हो, चाहे आप दुबई जाओ, थाईलैंड जाओ, आपको इंटरनेशनल ब्रांड्स दिखते हैं. इंडियन ब्रांड भी दिखना चाहिए. एस्पिरेशन इज़ कि जैसे यू सी चाइनीज़ ब्रांड्स नाउ, इंडिया का भी स्टेचर बढ़ेगा एंड इंडियन ब्रांड्स ग्लोबल सीन में भी दिखेंगे. तो ये एक बड़ा सपना है कि दुनिया भर में एक इंडियन ब्रांड हो जिसको लोग लव करते हो, जिसको लोग मानते हो, जिसको लोग एस्पायर करते हो, जिसके लिए. Got it. Very interesting. Abhi, I think, yeah, I really loved your passion
for this product, the apparel, and the way you've been building it, right, over the last 17 years. So many probably pivots and understanding what the actual problem is. It took some time, but that is, I think, the journey of a founder, that you have to be persistent, as you said. You might not find the right problem immediately, but वो उसको बट ढूंढना एक पड़ता चीज़ है, है, जितने प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर रहे हो उतना आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो. हाँ समझ गए ना? हाँ. क्योंकि वो कोई और नहीं कर रहा है. हम्म. वो प्रॉब्लम सॉल्व करो जो कोई और नहीं कर रहा है. और थोड़ा आगे का देखो, वो मुझे पॉइंट बहुत अच्छा लगा. आपने बोला ना कि इतना तकलीफ है, लेबर से डील करना पड़ेगा, ये सब करना पड़ेगा. अब हर कोई वही सोचेगा तो करेगा कौन? क्योंकि वहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है. वहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन गया है. इंडिया में 1.4 बिलियन पीपल है, तो ये भी कंज्यूमर्स हैं. हाँ. आज जो पर कैपिटा इनकम है, जो जीडीपी है, इसका डबल होगा तो कंजम्पशन भी डबल होगा. बनाएगा कौन? खरीदने वाले लोग है, बनाने वाला 1.4 बिलियन लोग हैं. बनाने वाला नहीं है. बनाने का एस्पिरेशन नहीं है. हाँ. तो बनेगा कैसे? I think that's a very good learning जो एक today's youth need to learn or need to understand. कि आप service driven से come back, or you need to also come and look at नहीं तो manufacturing. who will serve these 1.4 billion people? Yeah. You can't always send. मतलब हम जब टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट से लोगों को रिक्रूट करने जाते हैं तो टेक्सटाइल इंजीनियर्स को रिक्रूट करते हैं. जब रिक्रूट करते हैं वो लोग बोलते हैं टेक्सटाइल का मैं पैशन है, ये वो है, आ जाते हैं. जब अंदर टीम से घुल मिल जाते हैं सच बोलना चालू करते हैं कि सर और कहीं मेरे को सीट मिला नहीं, अच्छी कॉलेज में सिर्फ टेक्सटाइल मिला, मैंने ले लिया. राइट. बट वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्जेशन. थैंक यू सुनील फॉर योर टाइम. आई थिंक इट वाज वंडरफुल. बहुत कुछ सीखने को मिला एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर, स्केल कैसे करना. यस, थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.